Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra and today I'm here to talk to you about something really important. इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत दिनों से बात करना चाहती थी, बहुत दिनों से बोलना चाहती थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था और सही मौके का इंतज़ार कर रही थी. देन नाउ आई थॉट कि नहीं भाई, बोल ही देते हैं, जो भी हो बोल देते हैं, ठीक है. Have got a lot of comments regarding how much salary is really paid to assistant professor in private universities or private colleges particularly. So I wanted to point this out one particular thing कि मुझे ऐसा लगता है in my opinion कि private schools और private colleges में the lecturers and teachers are really underpaid. मतलब I have seen my friends who were working after their graduation was completed in English literature particularly. They started working as English teacher in different schools, private schools, or they are getting paid around 4,000, 5,000, 8,000 max to max. तो उनका 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद भी दे आर जस्ट गेटिंग 13,000 पे. 13,000 क्या होता है? 13,000 एक पेमेंट क्या होता है? आई रियली वॉन्ट टू नो 13,000 किस चीज़ के लिए तुम यूज़ करोगे, किस चीज़ के लिए तुम यूज़ करोगे. दैट इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड कि अपने घर का खर्चा भी उतारने के लिए नहीं हो पाएगा भाई 13,000. सो आई रियली फील कि शुड we all the teachers who are working in private, also the teachers who are working in government colleges and schools should actually raise this particular issue कि private schools, private institutes और private universities particularly इन सब चीज़ों में पेमेंट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, सैलरी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए. लुकिंग इनटू द वर्क दे आर असाइनिंग, लुकिंग इनटू द असाइनमेंट्स दे आर असाइनिंग, looking into the extra curricular activities that we are doing with the students to make them understand the value of it, and looking into the administrative works as well that they are assigning, which should not be done. अगर तुम्हारा पेमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हो और एम्प्लॉयज़ आर हैप्पीली डूइंग दैट. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं. सो आई रियली फेल्ट एट दिस पॉइंट कि मतलब the salary should be increased by a lot. Listen, I have an experience of teaching in government college English literature degree students, particularly English honors students. 1 year experience I have. Also I have qualified UGC NET. And when I go to colleges for teaching the degree college students in private universities, now that I have not qualified SSB, I am looking for private universities and private institutes where I can teach degree college students, or maybe 11th 12th. I'm okay with 11th 12th as well. So they are offering 20 to 25,000. I really don't think so कि एक नेट क्वालिफाइड लड़की या लड़का को 25,000 सैलरी देना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी है. If someone has done post-graduate in English, if someone has done post-graduate plus B.Ed in English, and then that person is applying for that particular पोजीशन, तब भी 30-35,000 देना चाहिए मेरे ख्याल से. मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बहुत बहुत अंडरपेड है सारे टीचर्स और सारे लेक्चरर्स पर्टिकुलरली. और इस इशू के बारे में मैं बहुत दिनों से बात करना चाहती थी. आई हैव बीन सीइंग पीपल गेटिंग अंडरपेड. आई हैव बीन सीइंग प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स को स्टार्टिंग सैलरी 4,000. आई वॉज गेटिंग 4,000 initially when after my graduation I qualified a interview and then started teaching in a particular private institute school where I was paid 4,500, which at the time I felt like क्या ही है, 4,000 में तो मेरा पेट्रोल खर्चा भी नहीं होगा, खाने पीने का तो छोड़ ही दो, ठीक है. तो this is something really weird and I really thought कि we should start talking about this issue particularly कि प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को अच्छे से पेमेंट दो, क्योंकि तुम लोग उनको इतना सारा काम दे रहे हो. लिसन, मैं गवर्नमेंट में भी पढ़ाई हूँ, प्राइवेट में भी पढ़ाई हूँ, ठीक है. मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई हूँ, सो आई नो द वर्क लोड डिफरेंस, ठीक है. और मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो लेक्चरर्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको ज़्यादा काम करवाया जाता है when compared to the government institutes teachers और lecturers, ठीक है. मैं नहीं बोल रही कि वो लोग काम नहीं करते, वो लोग अपना आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं. लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में दे आर डूइंग ओवरवर्क एंड दे आर गेटिंग अंडरपेड. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि काम भी करवा रहे हो, बहुत काम भी करवा रहे हो और पैसे भी नहीं दे रहे हो. दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग इन सो मैनी लेवल्स. एंड
मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता इतना कम पैसा टीचर्स को देना। और फिर देखो, बहुत लोगों का बहुत मजबूरी होता है तो उन लोग को जॉब करना पड़ता है, वो लोग नहीं छोड़ सकते, उन लोग के पास ऑप्शन नहीं है। लाइक मी, राइट नाउ आई एम सर्चिंग फॉर सो मैनी जॉब्स एट अ टाइम, एंड आई एम अप्लाइंग फॉर सो मैनी जॉब्स। लेकिन इतना अंडरपेड हो जा रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि 20,000, मैं 20,000 में करूँगी। आई हैव क्वालिफाइड यूजी से नेट, और अभी मैं 20,000 में जॉब करूँगी। दिस इज़ नॉट रियली, मतलब अपने वर्थ का भी तो देखना होता है ना जॉब। तो मेरे को लगता है कि सारे इंस्टीट्यूट्स में, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके प्राइवेट में काम करने वाले जितने भी टीचर्स हैं, उन टीचर्स लोगों को अच्छे से पेमेंट नहीं मिल रहा है। एंड वी शुड रेज दिस पर्टिकुलर इशू कि पेमेंट बेटर दिया जाए, बिकॉज यू आर लुकिंग इनटू द क्वालिफिकेशन, यू आर टेकिंग इंटरव्यूज़, यू आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग, एंड देन यू आर टेकिंग द दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग। आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो, हम लोग का टेस्ट ले रहे हो, रिटन एग्जाम दिया, मैंने इंटरव्यू दिया, सेकंड राउंड इंटरव्यू दिया, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग वेयर विच आई अटेंडेड। इतना सब कुछ होने के बाद यू आर ऑफरिंग 20,000 टू मी। इतना सब कुछ होने के बाद, and I have an experience of teaching 1 year in government college to the degree students, and also I have qualified UGC net, so I'm really disappointed in so many ways कि इतना कम कैसे हो सकता है। and I really feel bad for myself and including others as well, जो कि और मतलब we are not able to take any action regarding this, and we are just bound to accept the circumstances because there is no other option. सो हमको ये करना ही है। जहाँ भी जैसे भी नौकरी मिलेगा, जैसे भी करवाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करवाएंगे, करना पड़ेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उसका पेमेंट नहीं देंगे, करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस करवाएंगे, उसका पेमेंट नहीं देंगे, करना पड़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग रियली डिस्गस्टिंग। आई फील कि ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ माई ओपिनियन, एंड यू कैन always talk about this. You can tell me in the comment section if you differ in this particular opinion, if you think कि नहीं, जितना पेमेंट दिया जा रहा है ठीक दिया जा रहा है, या कुछ अगर तुमको लगता है कि मतलब मैं इस चीज़ में गलत हूँ, तो तुम बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट अगर लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, देन यू शुड हेल्प मी रेज दिस पर्टिकुलर इशू, और वी शुड रेज द यू नो we should at least try to raise this particular issue and get a better payment which we deserve, which we are worth of, right? Yeah, this is all that I wanted to talk to you about. और मेरे ख्याल से मुझे बहुत लोग पूछे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेजेस में अगर +2 को पढ़ाना हो तो कितना मिलता है। इट डिफ़र्स, पता है, ये डिफ़र करता है कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। मुझे लगता है कि 15 to 25,000 के बीच में लेक्चरर्स को मिलता है, विच आई डोंट थिंक सो इज़ जस्टिफाइड एट ऑल। लेक्चरर्स को इतना कम नहीं मिलना चाहिए। और स्कूल टीचर्स को तो 10 to 15,000 के अंडर, 15 भी नहीं, 13,000 के अंडर मिलता है स्कूल टीचर्स को, जितना मुझे पता है। और कहीं कहीं बेटर भी मिलता होगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कि कहीं नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम मैं जितना देखी हूँ कि बहुत कम मिलता है। दैट इज़ माई पॉइंट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर जगह में कम मिलता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी मिलता होगा। सो या, so this is what I was talking about. Give your opinion in the comment section if you differ or if you agree to this particular thing, and comment below, and thank you so much.